ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو آگاہ کریں کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کہتے ہیں کہ انتخابات جلد ہوں گے، فوری انتخابات کو کوئی روک نہیں سکتا، جنہیں غلط فہمی ہے وہ جلد دور ہو جائے گی۔ بنی گالہ میں عمران خان سے بابر اعوان کی ملاقات ہوئی، سیاسی، آئینی اور قانونی امور پر مشاورت کی گئی۔ 13 اگست کے جلسے سے متعلق بھی بات چیت ہوئی۔ عمران خان نے پھر عام انتخابات جلد ہونے کی نوید سنا دی، عزم دہرایا فوری انتخابات کو کوئی روک نہیں سکتا، جنہیں غلط فہمی ہے جلد دور ہو جائے گی۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے پارٹی رہنما اور قانونی ماہر بابر اعوان کی ملاقات، سیاسی، آئینی اور قانونی امور پر مشاورت کی گئی۔ 13 اگست کے جلسے سے متعلق بھی بات چیت۔ عمران خان نے کہا کہ 13 اگست کا جلسہ آغاز انقلاب ہوگا، عوام اب عام انتخابات کے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس سے پہلے عمران خان نے ٹویٹ میں لکھا کہ پاکستان آج یزیدیت کے نرغے میں ہے، خوف میں مبتلا ہو کر اس سازش کے سامنے سر جھکائیں گے یا بحیثیت قوم امتحان کا سامنا کریں گے۔ کوفہ کے لوگ بھی جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے راہ حق پر ہیں، لیکن وہ یزید کے خوف سے ان کی مدد کو نہ نکلے، جس سے اسلام کا عظیم ترین المیہ وقوع پذیر ہوا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ہر دور کا اپنا یزید ہوتا ہے۔ امریکی سازش سے مجرموں کا گروہ اقتدار میں لایا گیا، ان کے سرپرستوں کے اقتدار کی شکل میں پاکستان آج یزیدیت کے نرغے میں ہے۔ وہ 13 اگست کے جلسے میں اس فسطائیت سے نمٹنے کے منصوبے کا اعلان کریں گے۔ تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے شرکاء پر تشدد کی تحقیقات کے لیے GIT بنانے کا اعلان۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز، عطا تارڑ اور ملک احمد خان کو طلب کیا جائے گا۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ جس طرح ہم سے توقع ہے کہ ہم FIA سے تعاون کریں گے، ہمیں بھی امید ہے کہ آپ اسلام آباد میں چھپ کر نہیں بیٹھیں گے۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کی تحقیقات بھی اب تیز کی جائیں گی۔ PTI رہنما مراد سعید کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کو امریکی مفاد کے لیے ایک بار پھر ایندھن بنایا جائے گا۔ ملک کے امن کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ امریکی غلام رجیم چینج آپریشن کے وعدے پورے کرنے میں مصروف ہیں۔ میں پھر سے آگ لائی جا رہی ہے یا آگ آ رہی ہے کسی فیصلے کے نتیجے میں۔ قوم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فیصلے کیا ہو رہے ہیں۔ افغانستان میں آپ کے کیا مذاکرات ہوئے، کن نکات پر ہوئے، اس سے قوم کو آگاہ کیا جائے۔ افغانستان میں موجود جو لوگ ہیں ان کے واپسی کا بھی وعدہ کیا گیا۔ پاکستان کے خلاف بیانات دینے والے اور انڈیا کے گریٹر گیم پلان کا حصہ بننے والے آج سب حکومت میں ہیں۔ لوگوں کے خدشات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کے ایئر سپیس کے استعمال کی بات ہوئی، کیا رجیم چینج آپریشن میں امریکہ کے اثر و رسوخ کو قائم رکھنے کے لیے یہاں پہ ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے بھی کوئی کمٹمنٹس ہوئی تھی، اور کیا اس کا آغاز ہو گیا ہے؟ ہم پاکستان کو امریکہ کی جنگ میں ایندھن نہیں بنا سکتے۔ امپورٹڈ حکومت تو حصہ دار ہے، امپورٹڈ حکومت تو رجیم چینج آپریشن کا اعلی کار ہے، یہ ان کے مفادات کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ڈو مور وہ کہتے رہے اور آپ ڈو مور کرتے رہے۔ عمران خان آئے ٹیررزم سے ٹورزم پہ جانے لگے، نو مور تھا، ایبسولوٹلی ناٹ۔ چیف الیکشن کمشنر صاحب، حلف نامے اور سرٹیفکیٹ میں فرق ہوتا ہے۔ حلف نامہ وہ ہے جو شہباز نے نواز شریف کے لیے لکھا، اس پر وہ تاحیات نااہل ہو سکتے ہیں۔ PTI رہنما فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ PDM کو سمجھ آ چکی ہے کہ عمران خان کا مقابلہ جمہوری طریقے سے نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ممنوعہ فنڈنگ کیس کی آڑ لے کر سیاست سے باہر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ اندرونی اور بیرونی طاقتوں کے اشارے پہ عمران خان صاحب کو پاکستان کی سیاست سے آؤٹ کر دیں گے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ کو سمجھ آ چکی ہے کہ عمران خان کا مقابلہ جمہوری طریقے سے نہیں ہو سکتا، مل کر بھی ذلیل و خوار ہے عمران خان کے مقابلے میں۔ چیف الیکشن کمشنر صاحب، سرٹیفکیٹ جو ہے وہ حلف نامہ نہیں ہوتا، حلف نامہ وہ ہے جو سلطان مجبور الدین نے سلطان مفرور الدین کے لیے لکھا تھا۔ اس کے تحت شہباز شریف تاحیات اور واحیات نااہل ہوتا ہے۔ زمینی طاقتیں 15 حکمران پارٹیوں کے ساتھ ہیں، لیکن آسمانی طاقت اور عوام عمران خان کے ساتھ ہیں۔ شیخ رشید احمد کا ٹویٹ، لکھا الیکشن کمیشن کے مفروضوں اور تضادات کے پیچھے شریفوں اور زرداری کا چہرہ ہے۔ سیاستدان اپنے گندے کپڑے میڈیا میں دھو رہے ہیں، قرضے کے لیے بھی آرمی چیف کو فون کرنے پڑ رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کا شیخ رشید کے بیان پر رد عمل، کہا یہ غیر ملکیوں سے غیر قانونی ڈالر لیتے پکڑے گئے، ان فنکاروں کو اب قانونی ٹچ کی ضرورت ہے۔
तहरीक अदम एतमाद से 2-3 दिन पहले मुझे इमरान खान की जगह देने की पेशकश की गई। पीटीआई ने सेक्रेटरी जनरल असद उमर का बड़ा इंकशाफ कर दिया। कहा कि बनी गाला से फ़ोन आया है, फौरी बनी गाला वापस आओ। मैं गया तो वहाँ मौजूद 2 हज़रात ने कहा कि इमरान खान के मुतबादिल 3 नाम पेश किए जाएं, एक नाम आपका भी होगा। मैंने कहा कि इमरान खान के बगैर तहरीक इंसाफ में है क्या। असद उमर कहते हैं कि बेहतर है कि फ्रेश मैंडेट वाली हुकूमत आर्मी चीफ की तैनाती करे। वेलकम बैक। और यूएस एड से गाड़ियां अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए नहीं, आवाम के फलाह बहबूद के लिए ली। पीटीआई रहनुमा फ़ारूक हबीब का प्रोग्राम एतराज़ है में कहना था, हम किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं, उसकी पॉलिसी के ख़िलाफ़ हैं। मालूम नहीं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और यूएस एड के दरमियान MOU कब साइन हुआ। हमने अपनी ज़ाती इस्तेमाल के लिए तो नहीं ली, वो जो उनका एक फलाई यूएस एड तो पूरे पाकिस्तान के अंदर काम कर रही है, आज से थोड़ी काम कर रही है। जो उनका एक अपना फलाई प्रोग्राम है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ ताउन के हवाले से, वो उसके हवाले से था। नहीं तो आप कह सकते थे ना कि कौमी गैरत का तकाज़ा है कि हम जिन्होंने हमारी हुकूमत गिराई है साजिश करके, हमें उनसे गाड़ियां नहीं लेनी चाहिए थी। ये गाड़ियों का मामला नहीं है। यूएस एड डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर काम करती है। पता नहीं कब के MOUs जो है वो साइन हुए हैं। हम अपने मौकफ से नहीं हटे। हम दोस्ती जो है वो सबसे करना चाहते हैं, लेकिन हम किसी के साथ किसी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहते। MKM पाकिस्तान इत्तेहादियों से नाराज़। वसीम अख्तर कहते हैं, माजी में MKM से किए गए मुआहिदों पर अमल नहीं होता था, अब भी ऐसा ही लग रहा है। अगर मुआहिदों पर अमल नहीं हुआ तो मुत्तहिदा फैसला करने में आज़ाद होगी। तहरीक इंसाफ को छोड़ने का फैसला सोच समझ कर किया था। शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान के कहने पर पीपल्स पार्टी से मुआहिदा किया। MKM को छोड़कर दूसरी जमात बनाने वाला सिफर हो गया। वापस आ जाएं, मिलकर काम करते हैं। पीटीआई को आजमाया, पीटीआई ने कोई डिलीवरी नहीं की। हमने बड़े सोच समझ के फैसला किया था। उस वक्त खदशात थे, मियाँ शहबाज शरीफ, आसिफ साहब के कहने पे, बिलावल साहब के कहने पे, मौलाना फजलुर रहमान साहब के कहने पे ये एग्रीमेंट किए, वादे हुए थे, अमल नहीं किया गया, तो राब्ता कमेटी कोई ना कोई इंशाल्लाह फैसला करेगी। MKM की इम्पोर्टेंस आज भी ये 7 वोट 70 वोट की तरह है। जितने भी लोग इस पार्टी से निकल के गए हैं उनके लिए दरवाजे खुले हैं, आ जाएं, उसी तरह जद्दोजहद करते हैं, उसी मुकाम पे लेके आते हैं। और सुबह शाम बिल लोड शेडिंग सताती है। रात में 1-2 नहीं 5 बार बिजली जाती है कि इलेक्ट्रिक के सताए कराची वाले बिल बिला उठे। हुकूमत से दादरसी का मुतालबा। भाई अगर सुबह आओ तो लाइट नहीं है, कस्टमर को क्या डील करेंगे। 12 बजे लाइट आती है, उसके बाद 1 घंटे बाद चली जाती है, फिर शाम में 2 घंटे मिलती है। 3 घंटे की लाइट हमें मिल रही है। रात को कम से कम 5 दफा जाती है, 3 बजे भी, 1 बजे भी, 2 बजे भी। बिल जो है अल्लाह की पनाह है। इलेक्ट्रिक को कोई भी जो है कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। 12 घंटे जा रही है, ना सो सकते हैं ना काम पे आ सकते हैं, तो सुनने वाला कोई भी नहीं है यहाँ पे। 2.5 घंटे की जा रही है, अभी जाएगी, दोपहर में भी जाएगी, फिर उसके बाद शाम वाली भी लेंगे। और 8 बजे 9 बजे मार्केटें बंद कराने आ जाते हैं। 3 घंटे तो लाइट चली, क्या कारोबार होगा? कुछ भी कारोबार नहीं होगा। 1.5 घंटे अभी जा गई है और 1.5 घंटे शाम को जाएगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर दालों की कीमतों में इजाफा, 48 रुपये फ़ी किलो तक महंगी कर दी गई। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, इत्तलाक भी फौरी होगा। नून लीग की हुकूमत में महंगाई के आफ्टर शॉक्स का न थमने वाला सिलसिला बरकरार। यूटिलिटी स्टोर्स पर दालों की कीमतों में फौरी इजाफे का परवाना जारी कर दिया गया। काले चने की फी किलो कीमत 48 रुपए बढ़ा दी गई, जिसके बाद कीमत 172 से बढ़कर 220 रुपए फी किलो हो गई। 270 रुपए फी किलो में मिलने वाली दाल मसूर की कीमत 40 रुपए बढ़ गई। अब ये 310 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। सुर्ख लोबिया भी फी किलो 35 रुपए महंगा हो गया। नई कीमत 235 से बढ़ाकर 270 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई। साबित मसूर की दाल 35 रुपए फी किलो महंगी होने के बाद 310 रुपए हो गई। दाल मूंग की फी किलो कीमत में भी 30 रुपए का इजाफा हुआ, जिसके बाद ये 170 के बजाय अब 200 रुपए फी किलो पर दस्तयाब होगी। और महंगाई ने कम आमदनी वाले शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में होश रुबा महंगाई में ढाबा होटल काफ़ी हद तक आम आदमी को सस्ता खाना फराहम करने के लिए कोशां हैं। मजीद जानेंगे फरूख एजाज की इस रिपोर्ट में। शदीद महंगाई के बावजूद इस्लामाबाद शहर में आज भी कुछ ऐसे ढाबा होटल मौजूद हैं जो सफ़ेद पोश लोगों को रिलीफ फराहम करते हुए
सस्ते दामों एक वक्त का खाना फराहम कर रहे हैं। महल्ले में कोई यतीम या बेवा लोग उनकी मदद कर देते हैं। सफेद पोश बंदा वो है जो तकाजा नहीं कर सकता ना, उसे इज्जत भी बचानी है, रोटी भी कमानी। ढाबा होटल के मालिक कहते हैं कि सफेद पोश लोगों के रश को देखकर महकमा इनकम टैक्स के अहलकार टैक्स वसूली के लिए पहुंच जाते हैं। इनकम टैक्स वाले हमारे पास आ जाएंगे, जी आपके पास रश बढ़ है। मैंने कहा भाई मेरी रोटी पूरी नहीं हो रही तो तुझे टैक्स किधर से दो, चेक कर लो, अगर मेरा बैंक बैलेंस है तो तुम जो टैक्स लगाओ। महंगाई की शदीद तरीन लहर के दौरान कुछ ढाबा होटल सफेद पोश लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण है, जहाँ उन्हें सस्ते दामों खाना मुयस्सर आ जाता है। कैमरामैन जावेद अल्ताफ के साथ फरूख एजाज, ARY न्यूज़, इस्लामाबाद। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब से तबाही, सूबे में अमवात की तादाद 176 हो गई। साहिबान उजड़ गए, लोग बेघर, कारोबार ठप हो चुके। कई सैलाब ज़दा इलाकों में मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर हैं। सैलाबी रेलों और बारिशों से सबसे ज़्यादा क़लआ अब्दुल्ला मुतासर हुआ। तौबा चकज़ई में सड़कों की बहाली और तामीर का काम जारी है। मजमूई तौर पर सूबे में 18,000 से ज़ायद मकानात को शदीद नुकसान पहुँचा। मुख्तलिफ मकामात पर 16 पुल टूट चुके हैं। वसी रकबे पर खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं। और बच्चे की लाश, बूढ़े शख्स की पुकार और 4 लाशें बलूचिस्तान की नहीं थी, लेकिन लिख दिया गया कि ये बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। बलूचिस्तान हुकूमत की तर्जुमान फरा अजीम शाह सोशल मीडिया से सख्त खफा, कहती हैं कि किसी कौम को तबाह करने के लिए सोशल मीडिया बड़ा हथियार बन गया है। हर कोई आलाकार बना हुआ है। हम बताना चाहते हैं अपने इदारों पर किसी को उंगलियां उठाने नहीं देंगे। की लाश पानी में दिखाई जाती है, बूढ़ा अपने खानदान के साथ मदद को पुकार रहा है। लिखा जाता है ये देखें बलूचिस्तान का क्या हाल है। फिर 4 लाशें दिखाई जाती हैं और चीफ मिनिस्टर को खाना खाते हुए दिखाया जाता है। वो बच्चा नौशहरा के सैलाब में बहता हुआ कहीं से आया था। वो बूढ़ा शख्स झंग की पिक्चर है और इसके साथ साथ वो 4 लाशें वो ईरान की पिक्चर्स हैं। किसी कौम को अगर तबाह करना है, सोशल मीडिया का वेपन सबसे बेस्ट है। जाने अनजाने में बैरूनी साजिशों का आलाए कार बने हुए हैं। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई भी इंस्टीट्यूशंस पर उंगली उठाए। बलूचिस्तान की आवाम अपनी फौज के शाना बशाना खड़ी है। कोहे सुलेमान से आने वाले सैलाबी रेले ने डेरा इस्माइल खान की तहसील परवा में तबाही की दास्तान रकम कर दी है। घर बह चुके हैं, गंदम सब सामान हमारा बह चुका है। हमारे मकान, हमारे चारपाई, हमारे दाने सब कुछ बहा के लिए ये ले गया है। सैलाबी रेलों और बारिशों से मुतासिर लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इधर विजिट किया है और लोगों को यकीन दहानी कराई है कि हम इसको मुआवजा देंगे, इसको फौरी तौर पर इसको मुआवजा दिया जाए। इन लोगों का शिकवा है कि महकमा सेहत की टीमें यहाँ नहीं आई और न ही उन्हें मच्छरदानियाँ या दीगर सेहत की सहूलियात फराम की गई हैं। यहाँ अभी मच्छर बहुत ज्यादा हैं, उसकी वजह से सारे लोग बीमार हैं, तो मेडिकल कैंप होना चाहिए यहाँ। मिट्टी के ढेरों में तब्दील होने वाली इन बस्तियों को दोबारा तामीर होने में एक तवील मुद्दत दरकार होगी। कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ मोहम्मद इरफान मुगल, ARY न्यूज़, डेरा इस्माइल खान। और कुछ मौसम की बात करें तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, लांडी और अतराफ के इलाकों में तेज़ बारिश रिकॉर्ड की गई। नई सब्ज़ी मंडी एक बार फिर डूब गई। बारिश का पानी सब्ज़ी मंडी में दाखिल होने से शहरियों और ताजरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, लांडी और अतराफ के इलाकों में तेज़ बारिश रिकॉर्ड की गई। कराची में बलोच कॉलोनी के करीब मलीर नदी बंद को डंपिंग पॉइंट बना दिया गया है। हर तरफ गंदगी और कचरे के ढेर की वजह से शहरी शदीद अजियत का शिकार हैं। कहते हैं इंतज़ामिया की लापरवाही बड़े हादसे का सबब बन सकती है। चांद नवाब की रिपोर्ट। इंतजामिया और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की लापरवाही बलोच कॉलोनी के करीब मलीर नदी बंद को ही डंपिंग पॉइंट बना दिया, जिसकी वजह से हर तरफ गंदगी और कचरे के अंबार लग गए हैं। शहरी कहते हैं गुजरगाहों पर डंपिंग पॉइंट बनाने की क्या वजह है। गाँव का कचरा ला के यहाँ पे लोग डाल रहे हैं और हमारा जो इलाका है ना इतना गंदा हो गया, बहुत ज्यादा बदबू है यहाँ पे।
बचपन से यही क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, आज हम कहाँ जाए क्रिकेट खेलने, लवारिस कर दिया हमारे को, कचरा कुंडी बना दी सारी, यही आप वो पुल बना देते। बरसात की सूरत में ये कचरा नदी में गिरने का खदशा है, जिसकी वजह से मुल्का आबादियाँ ज़ेर आब आ सकती हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है डंपिंग पॉइंट को फौरी क्लियर किया जाए। सईद गनी वो भी हमारे इलाके के हैं, लेकिन उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। पूरे महमूदाबाद, बलोच कॉलोनी, सब जगह का कचरा इलाके यहाँ डाल रहे हैं। जिला इंतजामिया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फौरी मुतारिक न हुई तो कोई बड़ा हादसा भी पेश आ सकता है। शहरी हुकूमत ने पूरे शहर का कचरा मलीर नदी पे लाकर डाल दिया है, जिससे यहाँ से रहने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन मुस्तफा मेराज के साथ चांद नवाब, ARY न्यूज़, कराची। बुलेटिन जारी है, शामिल करेंगे ब्रेक। वेलकम बैक। कराची के इलाके जौहराबाद में मुबैना तौर पर जहरीला खाना खाने से 2 बच्चे जान बहक और वालिदैन की हालत गैर हो गई। और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में डायरिया वबाई शक्ल इख्तियार कर गया। एक माह में 3,500 से ज़ायद केसेस सामने आए हैं। जहांगीर खान की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत में मानसून खूब बरस रहा है, ऐसे में डायरिया और हैजा जैसे मौसमी अमराज भी सर उठाने लगे हैं। गुज़िश्ता एक माह के दौरान इस्लामाबाद के 2 सरकारी अस्पतालों में डायरिया के 3,500 से ज़ायद केसेज रिपोर्ट हो चुके हैं। तकरीबन 1500 केसेज हमारे पास OPD बेस पे रिपोर्ट हो चुके हैं। बहुत ज्यादा जो केसेज हैं वो एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, डायरिया, लूज मोशन, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, इस किस्म की ये रिपोर्ट हो रही है। तिबी माहिरीन के मुताबिक डायरिया की बरवक्त तशखीस न होने पर मरीज को पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है। हाथ अच्छी तरह से धोएं, खाना खाने से पहले पानी उबाल के इस्तेमाल करें। सड़क के किनारे जो मशरूबात और जो खाने की चीजें मिल रही होती हैं वो इस्तेमाल ना करें। गुर्दे जो है फेल हो सकते हैं, इंसान बेहोश हो सकता है, ब्लड प्रेशर जो है बिल्कुल गिर सकता है और ब्लड प्रेशर गिरने की वजह से नींद बेहोशी या मुकम्मल बेहोशी जो तारी हो सकती है। तिबी माहिरीन के मुताबिक मौसम में बरसात में जरा सी एहतियात करके डायरिया समेत दीगर वबाई अमराज से महफूज रहा जा सकता है। कैमरामैन जावेद अल्ताफ के साथ जहांगीर खान, ARY न्यूज़, इस्लामाबाद। आज़ादी मिलने और हिंदुस्तान से हिजरत के वक्त क्या माहौल था। मुल्तान के बुजुर्ग शहरी चौधरी नज़र हुसैन की आंखों के सामने जब भी क़याम पाकिस्तान के मनाजिर आते हैं तो आंखें भीग जाती हैं। पाकिस्तान बनते बड़ा जुल्म, बड़ी अफरा तफरी देखी है, वो अब भी याद करते हैं तो हमें आंसू आ जाते हैं। मनाजर तो बड़े अजीब किस्म के थे, मार कुटाई थी, कत्ल गारत हो रहा था। जो काफिले के साथ आए तो उसमें भी हमले हो गए। ठंड का मौसम था, बरसात थी, कीचड़ वगैरह बहुत थे, कांटे पैरों में चुभते, जूते कपड़े सारे खराब हो गए। बेचारों मददगार जब हम पक्की सड़क पर चढ़े ना तो बरसात इतनी हो रही थी, सिर्फ रोड़ियाँ रह गई थी। हमारे पास जूते थे नहीं, अब वहाँ चल नहीं सकते थे। रजाई को फाड़ा, उसमें से रुई निकाली, पट्टियाँ बनाई, पैरों के ऊपर बांधा, चलते रहे आहिस्ता आहिस्ता। बढ़िया कुर्बानियाँ दी है, ऐसा नहीं बना। अब इस पाकिस्तान की बेकदरी हो रही है। बड़ा कीमती चीज़ है ये, हमने जाने कुर्बानियाँ दे के ये मुल्क बनाया, खून से बना है। किसी ने तश्तीज में रख के फूल नहीं दे दिए थे। कांटों पे चले हैं, गर्दनें कटवाई हैं, इज्जतें लटवाई हैं, बहुत कुछ हुआ है। मुझे नहीं याद आता, वाक़यात ऐसे थे कि उन्हें याद करके ना बर्दाश्त नहीं होता। बांग्लादेश में पेट्रोल की कीमतों में तारीख़ी इजाफा, फ़ी लीटर पेट्रोल 130% का हो गया। बांग्लादेशी हुकूमत ने पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में यकमुश्त 50% से ज़ायद का इजाफा कर दिया। बांग्लादेश में पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 307 रुपये पाकिस्तानी हो गई है। क़ुव्वत समात, गोयाई और बीनाई की कमज़ोरी के बावजूद फ़न मुसव्वरी में कमाल महारत। अस्का बानो यूनिवर्सिटी में नॉर्मल तलबा के साथ ज़ेर तालीम है। तालिबा हर सेमेस्टर में नुमायाँ पोजीशन हासिल करके स्कॉलरशिप हासिल करती हैं। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेस की तालिबा अस्का बानो से मिलवा रहे हैं मंजूर अहमद अपनी इस रिपोर्ट में। मसनूई और एक सालिमात की तस्वीर कैनवस पर उतारने वाली अस्का बानो आम सी आर्टिस्ट नहीं। आला लगाने के बावजूद कुव्वत समात इंतहाई कम, ठीक से बोल नहीं सकती और बीनाई भी कमजोर है। दीगर तुलबा की निस्बत पढ़ना उसके लिए कई गुना ज्यादा मुश्किल है। अगर बुक में ये बात नहीं लिखा होता तो मतलब क्या लिखा होता है मुझे तो समझ में नहीं आती है। इस लफ्ज़ जब लिखा होता है ना तो मुझे ये लफ्ज़ देखते मुझे मैं नोट पे लिखती हूँ ताकि मुझे आइडिया मिले तो ये क्या आता है। अस्का बानो BS फाइन आर्ट्स की तालिबा है। हर सेमेस्टर में नुमाया ग्रेड लेकर 3 बार स्कॉलरशिप हासिल कर चुकी है। आर्टिस्ट तो अच्छी ही है, इसकी थ्योरी बड़ी अच्छी थी। ये डिसाइड किया कि जी इसको हमेशा नॉर्मल
نارمل بچوں کے اور کسی ہینڈی کیپ اسکول میں یا اسپیشل بچوں کے اسکول میں نہیں ایجوکیٹ کریں گے. FSC میں اچھے مارکس لے کر بیوٹمز میں جو اس کا ایڈمیشن ہوا ہے نارمل بچوں کے ساتھ کمپیٹ کر کے اس کا ایڈمیشن ہوا, اس کو کوئی اسپیشل سیٹ نہیں ملی. ازکا بانو مستقبل میں اکیڈمی کھولنے کا ارادہ رکھتی ہیں تاکہ ہر طرح کے بچوں کو وہ آرٹ کی زبان سکھا سکیں. ازکا کی زندگی اور اس کا کام یہ ثبوت ہیں کہ اس طرح کے لوگ معذور نہیں خاص ہوتے ہیں. ذرا سی توجہ ان کی زندگی بنا دیتی ہے. کیمرمین شہید لودھی کے ساتھ منظور احمد, ARY نیوز, کوئٹہ. اور زبیر عرف جھارا پہلوان کے بعد ایک مرتبہ پھر ملک کا نام پاکستانی ریسلرز نے روشن کیا. کامن ویلتھ گیمز میں چاندی کا تمغہ حاصل کرنے والے محمد شریف طاہر کے والدین بے حد خوش ہیں. انہی کے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے الماس خان, ان سے جانیں گے. پہلوان کے بعد سے پاکستان میں پہلوانی کا نام تقریباً ختم ہو چکا تھا. محمد شریف طاہر کے گھر اس وقت بیٹھے ہیں جس نے چاندی کا تمغہ حاصل کیا, اور ان کے والد سے ہم بات کرتے ہیں. طاہر صاحب سے. پورے پاکستان کی دعائیں لگی ہیں ہمارے بچوں کو اور انہوں نے پاکستان کی عزت کروائی ہے ساری دنیا میں. انشاءاللہ یہ آگے بھی پاکستان کا نام روشن کریں گے, پاکستان کے لیے میڈل نکالیں گے. اللہ کا شکر ہے میرے بیٹے نے بہت اچھا کام کیا ہے اور یہ خوشی ہے, یہ رات سے بہت خوش ہیں اس چیز سے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا انہیں اپنے بلبوتے پہ وہ باہر گیا. جی ہاں, 2 سال بعد اولمپکس ہیں اور 2 سال میں اس کی ٹریننگ کروائی جائے اور پاکستان کے لیے گولڈ میڈل لے کے آ سکتا ہے. جی فی الوقت اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے ARY. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.